है और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी उनकी रिपोर्ट आ जाएगी एंड वी वुड वांट टू हैव अ रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल कमेटी आल्सो so that there should not be any misunderstandings, there should not be any questions which will not be answered by us. ये बताइए कि बड़े कौन से डैम्स जो हैं हमें बनाना ज़रूरी है ताकि हमारी जो पानी की ज़रूरियात हैं मुस्तकबिल के अंदर उनको पूरा किया जा सके। देखें जी, ये लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि विल हैव टू गो फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स। बड़े डैम हमें बनाने पड़ेंगे और वो इसलिए बनाने पड़ेंगे कि एक तो हमें पावर जनरेशन भी उसमें हमें चाहिए ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। वी स्टिल हैव 20 प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन इन हाइडल, और हाइडल पावर सस्ता भी होगा, जाहिर है दैट इज गोइंग टू बी कम्पिटेबल और सस्ता भी पड़ेगा जी, क्योंकि जब तक कम्पिटेबल नहीं होंगे हमारे ये यूटिलिटी चार्जेस तब तक इन्वेस्टमेंट के लिए एक इंसेंटिव देना भी मुश्किल हो जाता है। सही। तो वी हैव प्रपोजल्स इन आवर माइंड एंड वी आर वर्किंग आउट ऑन दीज प्रपोजल्स एंड इंशाल्लाह वी विल टेक अ डिसीजन व्हिच विल बी इन नेशनल इंटरेस्ट। तो प्रोविंसेस की सपोर्ट डेफिनेटली जो है इन इश्यूज के ऊपर उनसे डिस्कशंस तो हो रही होंगी। We will take provinces along with us and we will not allow anybody to politicize these issues without realizing the importance of these projects. Sahih. You will have to look into this as a Pakistani and when there are enough guarantees where nobody will be deprived of their basic right and their share of water, I don't think there should be any panic. एक दूसरा ये है कि टेलीमेट्री सिस्टम जो हमने प्रेसिडेंट साहब हैड टेकन इनिशिएटिव ऑन दिस, क्यों कि चार भाइयों में क्यों मिसअंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है जी, अगर पानी की कोई, हालांकि अभी तो मैंने आपको बताया कि खरीफ और रबी में हमने इसको इमिकबली इसको सेटल किया। सही। लेकिन फिर भी टू मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, यू नो, बिकॉज एवरी टाइम यू कांट हैव दिस decision on ad hocism by inviting all four irrigation and food and agriculture ministers from provinces. So President Saab had decided this and had taken an initiative for having these telemetry system fixed on our barrages, on our river system, so that everybody should be happy and satisfied that they are getting their share, and it's going to be transparent, it's going to be available on email. So anybody can go into the website and you will get to know what is the share of Punjab and what's the share of Sindh, Balochistan and frontier. Nothing is going to be hidden from anyone. Why should we hide anything from our own people? We would want to be very straightforward and tell them that you share whatsoever is available with us in this glass, we will share it as a brother. So this is a very national attitude and spirit that we have taken these decisions. मिनिस्टर साहब, आप सिंध से हैं। सिंध का हमेशा से ये एक वो होता है कि कंप्लेंट होती है जी कि 1991 अकॉर्ड के मुताबिक हमें पानी नहीं मिलता। तो इस कहाँ तक ये मतलब इसके अंदर कोई सदाकत है, और इस इशू को कैसे, टेलीमेट्री का आपने जिक्र किया, तो इसको मजीद कैसे फ़ाल बनाने के लिए? There are in fact 23 stations where we have these telemetry systems installed. 19 are operational. The remaining 4 would be operational in another 2 or 3 days. We had some problems there, some electric problems, some load shedding problems, and we would want to get out of this load shedding problem also, which to me is a disaster for our investment, for our industrial activity, for our commercial activity, even for domestic people. There are people who are sick, there are people, their child, I mean there are operations being conducted there in the hospitals, and you want to go for load shedding, which should really be get rid of. वाटर वेस्टेज के ऊपर कितना कंसंट्रेट हो रहा है इस वक्त? मैंने आपको बताया कि जी इस साल हमारी पानी की जो रिजर्वायर की सिचुएशन थी, it was not encouraging at all. When I took over as Minister of Water and Power, to the total reservoirs availability of the water was 4 million acre feet, and which was really not sufficient, and we were assessing shortages up to 56% for Rabi, because the availability was not there. हुआ ये था कि जी इस दफ़ा कैचमेंट एरियाज में बारिशें नहीं हुई, glaciers melt नहीं हुए because of low temperatures in northern areas. So naturally when you have no rains and the temperatures are low, the reservoirs are not filled. But God was very kind and we all, Prime Minister had gone to Saudi Arabia. वहाँ भी उन्होंने दुआ की थी, प्रेसिडेंट साहब, हम सब जो भी थे उन्होंने सबने, सारे पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर दुआ की, और खुदा की मेहरबानी ये हुई कि अब हमारे पास 6 मिलियन एकड़ फीट पानी अवेलेबल है,
2 मिलियन एकर फीट ज़्यादा आ गया है, और इंशाल्लाह अब ये शॉर्टेजेस जो हैं वो कम होकर 42% पे आएंगे। लेकिन जो बारिशें हो रही हैं जिस तरह से, तो हमें इतनी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि गीली ज़मीन होगी और वीट सोइंग, इंशाल्लाह द शॉर्टेजेस विल बी रिड्यूस्ड मोर। नाज़रीन, एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मिनिस्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हुकूमत ये चाहती है, और हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं इस वक्त, हुकूमत का जो फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए, स्पेशली वाटर एंड पावर सेक्टर के अंदर जो आपकी मिनिस्ट्री है। तो थोड़ा सा कंसर्न होता है जो भी बाहर से इन्वेस्टर्स आते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का जो है वो लोगों का कंसर्न होता है। तो कैसे आप इंश्योर करेंगे जितने भी बाहर के जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं लोग, उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए ताकि वो आसानी से यहाँ पे आके अपना काम कर सकें? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और बहुत अहम सवाल किया है आपने। इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं या जो फॉरेन इंजीनियर्स हैं जो यहाँ आते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, जैसे ग्वादर का आपको पता है कि चाइनीज़ आर अवर फ्रेंड्स, बड़े हमारे पुराने दोस्त हैं, और चाइनीज़ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में। आपको पता है कि ग्वादर जैसा बड़ा मेगा प्रोजेक्ट, उसमें उनके प्रॉब्लम्स भी हुए, आपको पता है वहाँ ब्लास्ट भी हुए, उनके लोग भी मारे गए। फिर भी ये जान के आपको खुशी होगी कि 18 दिसंबर को वो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट करके दे रहे हैं। गोमल जैम के अंदर है, हाईवेज में। तो मतलब ये कि चाइनीज़, जापानीज़, ऑल दीज फॉरेन कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, दे आर वर्किंग हियर, बट अनफॉर्चुनेटली look at the attitudes of our people. Those, I would not say everybody, those extremists, they want to create an atmosphere by which they want to damage the image of Pakistan. They want to see that there should be no investment coming into Pakistan. There should not be any foreigner coming and getting involved in these mega projects. And you could see what had happened to Chinese. They were kidnapped. One was killed. Now you tell me, are these people Pakistan friendly? Are they in favor of Pakistan's economical achievements? No. They are against us. And this is what the President of Pakistan, General Pervez Musharraf, have been saying it right away from the first day. These people have their own agenda. और उनमें ज़्यादा foreigners भी involved होंगे, definitely. Whosoever. But we have to protect our own image and interest. हमारी पाकिस्तान की एक अपनी जो इंटीग्रिटी है या सिक्योरिटी है या जो है कि हमारा एक प्रोग्राम है, इकोनॉमिकल प्रोग्राम, हम उसको तो डिस्टर्ब होते हुए देख नहीं सकते। Whosoever they are, but I would be very clear in saying so that we will not bow down with all these pressures and amount of all these activities. मैं तो ये भी अपील करूंगा उनको कि जिनको ये गलत तरीके से समझाया पढ़ाया जा रहा है, अपने मुल्क के खिलाफ आप कैसे काम कर रहे हैं, आप मुल्क के लोगों को कैसे मार रहे हैं, किसने आपको इजाजत दी है? कुरान शरीफ में तो बिल्कुल वाज़ेह तरीके से ये लिखा हुआ है कि आप किसी को, काफिर को भी बगैर सबक हलाक नहीं कर सकते, उसका भी हिसाब होगा। तो आप कैसे अपने भाइयों को किस तरह से आप ये बम ब्लास्ट करना या इस तरह से जाना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट इज टेकिंग सीरियस precautionary measures, and we have provided foolproof security measures. Some places it was lapsed, but now we have beefed up all that security plan also. Very shortly, especially for my water sector, I am going to have a briefing from different provincial, even the federal agencies, so that we can determine and we are satisfied with those security plans. मिनिस्टर साहब, अब थोड़ा सा आएंगे बड़े सिटीज़ के अंदर, फिर देहातों में, कि